भौगोलिक सांकेतांक. Honorable members, as you are aware, today 3 items of government business are listed from 2 p.m. onwards, including the statutory resolution. There are many speakers remaining to participate in the discussion on the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. Thereafter, one more government bill has been listed. Honourable members, to take up all the listed business today. If the House agrees, the lunch hour may be skipped today. Yes, Honourable Minister for Parliamentary. Informal discussion with some of the senior colleagues also. Since we have 2 listed government business which are to be passed today and we'll have to sit slightly longer. So BJP party is ready to sacrifice some of the allotted times remaining with BJP on CAPF. And I'll not tell other members to sacrifice, but we will sacrifice our time. Some of our members will speak, but lesser than the time given. But as you propose, sir, we agree with. I think if the time is required, we can sit a little after yes. 6 o'clock also. Yes, beyond. Okay. 6 o'clock and beyond. The House has agreed. Accordingly, the sir. Honorable Leader of the Opposition. Sir, thank you very much. देखिए, इनको जब चाहे तब बिल लाते हैं, जब चाहे उस वक्त चर्चा के लिए तैयार होते हैं, जब चाहे तब स्टेटमेंट देते हैं. सर, मैं आपको 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए और मैंने दिया, एक बार नहीं 2 बार लेटर भी दिया. उसके लिए उनके पास समय नहीं है. पूरा दुनिया तबाह हो रहा है एलपीजी के लिए, गैस के लिए, सब के लिए, और इधर दाम बढ़ रहे हैं. Yes, I will. So why they are not agreeing for this? I will ask the government to respond, please. 1 minute. Sir, next is that one thing is this. Please. The prices are going up. You don't want to decide. You don't want to discuss that. That is one thing. The another thing is that, see, whatever we suggest, they disagree, and whatever they want, they put, and forcibly, they with wise vote they declare. What is this? Is it democracy? No, sir, no. We thought that after you coming, opposition will get justice. You are getting more time than the Treasury bench. If no, I will is, give you the data. No, time is not important, sir. The whatever the matter I have raised, for that time should be given. Okay, I will ask the government to respond. Our Honorable Minister for Parliamentary Affairs. बीएससी में ये बात कई सदस्यों ने भी रखा था, और मैंने बीएससी में भी लीडर ऑफ द हाउस खुद अटेंड करते हैं. हम लोग ने बताया कि गवर्नमेंट चर्चा से नहीं भाग रहा है. लीडर ऑफ अपोजिशन जो बता रहा है वो सही नहीं है. सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जो संबंधित मंत्रियों का स्टेटमेंट हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा डिटेल में प्लीज let him speak. Jaji, please take your seat. मनोज कुमार जाजी, please take your seat. तो मनोज कुमार जाजी, please take your seat. अगर मुझे रेस्पॉन्ड नहीं करना है तो मेरा बिहार में कौन रेस्पॉन्ड करना आप बताइए. अगर मेरा ही नहीं सुनोगे तो कौन रेस्पॉन्ड करेंगे बताइए. जब लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने दिया जाता है, सर यहाँ एक प्रॉब्लम है. ये जो बोलने चाहता है वही बोल रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते. ये लोग सुनना नहीं चाहते तो उल्टा है, हमको एक्यूज करते हैं, वो ही नहीं सुनते, सरकार का बात ही नहीं सुनते. सर, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा राज्यसभा दोनों अटेंड नहीं किए. कांग्रेस से आए, कांग्रेस से मेंबर अटेंड किए हैं, बाकी पार्टी के भी प्रतिनिधि मंडल आए, सब ने अटेंड किया. और दूसरी बात, जब फाइनेंस बिल पे प्लीज फाइनेंस बिल में चर्चा हुई,
जब फाइनेंस बिल में चर्चा हुए, मैं रिकॉर्ड, आपका ही रिकॉर्ड आपके पास भेज देता हूं। पूरा आपका भाषण ही एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इसी पे आपने अपना बात रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल में जवाब दिया है और प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर से पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में बातचीत किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस सदन में और लोकसभा में डिटेल में बताया कि क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार ने कितना कदम उठाया और प्राइस को कम करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। दुनिया में प्राइस डबल से ज्यादा हो गया, इंडिया में प्राइस को आम आदमी का कंट्रोल से बाहर ना जाए, उसके लिए हिस्टोरिक एक्साइज ड्यूटी में कम किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा कदम उठाने के बाद, इतना बड़ा क्राइसिस को इतना अच्छा से हैंडल करने के बाद भी आप राजनीति करते हैं। ये कोई राजनीति करने का चीज है क्या? एक जगह में क्राइसिस है हमारा नेबरहुड में, जहां से पेट्रोल, जहां से गैस आते हैं, वहां लड़ाई है जो हमारा वजह से नहीं हो रहा है, और ऐसे क्राइसिस में भी विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। कितना अफसोस की बात है। पूरा देश एकजुट खड़ा होने का समय है, ये राजनीति का समय नहीं है सर। So, now I'm giving. Please give the mic to honorable leader of the opposition. Sir, I respectfully submit you, ये रेफरेंस जो दे रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें एलओपी नहीं आए और लोअर, कहाँ थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? अरे you may be. I have sent my representative. You are there. Sit down. Sit down. No, I will tell you. Sir, You please. you were there as government representative. I also sent my representative. Mukul Wasnik was there. Tariq Anwar there. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen your lecture? What authority you got? Now, You are not dummy minister. You want to respond? You don't Yes. have power. Honorable I Minister condemn for such a Parliamentary Affairs, statement. please. You will ये not. सर, कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन, आपने जब भी हमने देखा है और आपके ऊपर में उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उनको बोलने नहीं देता है। दूसरा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन Please. खरगे जी, Please. हम लोगों ने हमेशा Let him speak. इनको सम्मान दिया है। ये प्रधानमंत्री को सिर्फ गाली देने के लिए सुबह शाम ये सदन में और बाहर में यही काम करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को हम लोग थोड़ा सीनियर है, रेस्पॉन्सिबल से अपना पद को गरिमा में बात करेंगे। ये कोई अपना पद का गरिमा नहीं रखता है, ये खुद सीनियर है। इनका लोकसभा में इनका नेता प्रतिपक्ष को भी ये नहीं समझा सकता है, ये खुद भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते Please हैं। conclude. Now the House has agreed. Accordingly, the statutory resolution will be taken up at 1 p.m. followed by the further discussion on the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. Now, question hour. At what time will you take up the IBC bill? Please indicate. Sir. Let us follow some schedule. Let it not be After CFP, open-ended. yes, we will. I will come back Approximately to you. what time will you take up the? Yeah, I will take it up. After CAP, we will take it up. Now, question number 391, Shriman Pradeep Kumar Verma ji. नंबर 391 Honorable Minister, सभापति महोदय जी विवरण सभापति the first supplementary, Shriman Pradeep Kumar Verma ji. नशा प्रभावित व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापना हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में Honorable Minister. अभी तो उन्होंने प्रश्न पूछा ही नहीं माननीय महोदय। नशा प्रभावित व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय की कार्य योजना, विभिन्न कार्यक्रमों एवं इनके परिणामों के बारे में मंत्री महोदय ने विस्तार से बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे राज्य झारखंड में नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन
और नशा मुक्त भारत अभियान की स्थिति क्या है? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय जी, नशा ऐसी महामारी है जो परिवारों को तो नष्ट करती ही है, हमारी सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने का काम इसके कारण से हो रहा है। और माननीय सदस्य के द्वारा इस महती विषय पर जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया था और इस अभियान के बाद पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जो विभिन्न तरह की गतिविधियों का संचालन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें नशा मुक्त सुविधाएं IRCA इरका 348 देश भर में, CFLI 45, ODIC 76, DDAC 45, ATF 54, कुल 768 नशा मुक्ति उपचार एवं पुनर्वास केंद्र विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ किए गए। झारखंड के संबंध में माननीय सदस्य के द्वारा पूछा गया है, झारखंड राज्य में कुल 9 नशा मुक्ति सुविधाएं, जिनमें 6 जिला नशा मुक्ति केंद्र DDAC, एक नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र IRCA इरका और 2 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं ATF शामिल हैं। ATF में से एक देवघर के एम्स और सिमडेगा के सदर अस्पताल में एक ATF शामिल है। ATF ने 4,802 रोगियों के फॉलोअप के साथ में 2,061 रोगियों की देखभाल की है। ये केंद्र उपचार, पुनर्वास और परामर्श सेवाएं प्रदान करके नशा मुक्त भारत अभियान के आउटरीच प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्य भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता और सामाजिक जुड़ाव गतिविधियों में सहायता भी दे रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में NAPDDR के अंतर्गत झारखंड को कुल 3.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे 13,741 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। Second supplementary. NMBA प्रदीप कुमार वर्मा जी। NMBA कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड राज्य में कितने जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि झारखंड राज्य में सामाजिक संगठनों, ब्रह्म कुमारी आदि के द्वारा भी क्या कोई गठबंधन करके हम इस प्रकार के नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम चला रहे हैं? उनकी गतिविधियों का विवरण क्या हम कुछ बता सकते हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय जी, नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र हम प्रारंभ करना चाहते हैं। जहां पर नशा मुक्ति केंद्र प्रारंभ नहीं हुए हैं, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपने क्षेत्र से संबंधित जो है ना प्रस्ताव राज्य सरकारों के द्वारा भिजवाएं, जिससे कि वहां पर भी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उपचार और पुनर्वास सुविधाओं के केंद्र वहां पर प्रारंभ किए जा सकें। झारखंड के सभी 24 जिले नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें 6,56,704 युवाओं और 6,04,916 महिलाओं सहित 17,38,170 लोगों की पर्याप्त पहुंच इसमें बनाई गई है। जागरूकता सृजन गतिविधियों में डोर टू डोर अभियान, मैराथन, नुक्कड़ नाटक अभियान, साइकिल रैली, रंगोली, निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण, ऐसी बहुत सारी गतिविधियों का संचालन वहां पर किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान और शपथ समारोह के साथ ही साथ जो हमारी जीविका दीदियां हैं, ये जीविका दीदियों की भागीदारी ने, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की हमारी बहनों ने इसमें जमीनी स्तर पर और सामुदायिक संवेदनशीलता को और अधिक मजबूत किया है। पाकुड़, रांची, बोकारो और रामगढ़ जैसे जिलों ने आउटरीच संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस तरह से ये डेटा राज्य में NMBA के तहत व्यापक पहुंच और सामुदायिक भागीदारी दोनों पर प्रकाश डालते हैं, जिससे निरंतर जागरूकता अभियानों और डिजिटल भागी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने एक बात और उनके द्वारा कही गई माननीय सदस्य के द्वारा कि जो आध्यात्मिक संगठन है, इन आध्यात्मिक संगठनों में विशेष रूप से ब्रह्म कुमारी संस्था का उन्होंने उल्लेख किया, तो हमने इस संबंध में आध्यात्मिक संगठनों से देश भर में जो MOU किया है और इस MOU के अंतर्गत चाहे वो ब्रह्म कुमारी संस्थान हो, चाहे संत निरंकारी मिशन हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, गायत्री परिवार, इस्कॉन, रामचंद्र मिशन, शिवानंद योग वेदांत धनवती आश्रम
और पतंजलि विश्वविद्यालय, इन आध्यात्मिक संगठनों से जो समझौता हुआ है, इन आध्यात्मिक संगठनों की देश भर में शाखाएं हैं, इनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं और ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रमों में उनका योगदान भी जुड़ रहा है और उनके अनुयायियों के द्वारा भी जो उनके शाखाओं में कार्यक्रम होते हैं, उन शाखाओं के माध्यम से समाज को न केवल जोड़ना बल्कि उनको उनके पुनर्वास के लिए और उनको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए और समाज से नशा मुक्त जैसी नशे की जो बुराई है, इस नशे की बुराई को समाप्त करने में जब आध्यात्मिक संगठनों का, सामाजिक संगठनों का जुड़ाव जुड़ता है, धर्मगुरुओं का साथ मिलता है, तो इस बुराई को समाप्त करने में केवल केंद्र सरकार के प्रयास अकेले नहीं, केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ ही साथ राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग अपेक्षित होता है। और इस तरह के जब सामाजिक संगठन और एनजीओ मिलकर जब सब एक साथ कदम से कदम बढ़ाते हैं, तो झारखंड में भी और पूरे देश में भी इस हमारा जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इस नशा मुक्त भारत अभियान में हमको विशेष रूप से इसमें आगे चलकर और भी ज्यादा तीव्र गति से इसमें काम करने में हमको सफलता मिलेगी। थर्ड सप्लीमेंट्री, प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के कंसल्टेटिव कमेटी में कई बरस रहा हूं, तो मैं जानता हूं ये आम इन्हें गुने मंत्रियों में से है जो पेड़ और गाय की कहानी सुना करके प्रश्न से मीलों दूर नहीं खड़े होते। मेरा सीधा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि बिहार में प्रोहिबिशन के बाद सूखे नशे में और उसके प्रसार में काफी बढ़ोतरी की खबरें आती है, आए दिन मीडिया कवर करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस दिशा में बिहार में क्या प्रगति हुई है, क्या पहलकदमियां ली गई है और इसके मद्देनजर कितने अध्ययन कमीशन किए जाते हैं टाइम बाउंड। शुक्रिया सर, जय हिंद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय विद्वान सदस्य शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अक्सर शैक्षणिक क्षेत्र से ज्वलंत मुद्दों को भी उनके द्वारा निरंतर मैंने देखता हूं कि उठाया जाता है। उन्होंने बिहार के संदर्भ में के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत के पूरे देश में यह समस्या जिस तरह गंभीरता के साथ में आगे आ रही है, बिहार में भी और इस समस्या के निदान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो NAPDDR योजना के अंतर्गत नशा मुक्ति उपचार और पुनर्वास केंद्रों का जहां तक सवाल है, बिहार में और इस दिशा में इरका के 7 केंद्र और CPALI के DDSE के 6, ATF के 2 और इस तरह से 15 नशा मुक्ति उपचार और पुनर्वास केंद्र वहां पर प्रारंभ किए गए हैं। और साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें तो इन 5 वर्षों में बिहार के लिए नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को गति देने के लिए 20-21 में और 3.97 करोड़ रुपए की राशि वहां पर जारी की गई और 22-23 में 1.84 करोड़ रुपए की राशि, 21-22 में 2.5 करोड़ रुपए की, 2023-24 में 2.25 करोड़ की राशि और 2024-25 में 5.98 करोड़ रुपए की राशि वहां पर जारी की गई। इस दौरान पिछले 5 वर्षों में बिहार में जो लाभार्थियों की संख्या है वो बिहार में 2020-21 में 1444, 21-22 में 1583, 22-23 में 1487, 23-24 में 2022 और 24-25 में 30,454। एक चीज और माननीय सदस्य के द्वारा उठाई गई, उन्होंने उल्लेख किया कि इसके संबंध में कोई सर्वेक्षण की बात उनके द्वारा की गई। तो मैं माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन को भी कि इस संबंध में 2017-18 में एम्स के सहयोग से एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कराया गया था और उसके बाद में फिर अभी 2025 में 17 जून 2025 में एम्स से फिर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने के आदेश हो गए हैं और इसके लिए 78,28,67,656 रुपए की पहली किस्त की राशि भी जारी कर दी गई है। पहला सर्वेक्षण 17-18 में किया गया था और 2019 में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। ये दूसरा सर्वेक्षण होने के उपरांत इसकी भी रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से ये हमारे युवाओं को, स्कूल के विद्यार्थियों और कॉलेज के विद्यार्थियों को, उनको नशे की गिरफ्त से बाहर लाना, उनकी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उनका उपयोग करना और इसके लिए 2 तरह के कार्यक्रम इसके लिए बनाए गए हैं, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में जिससे उनकी स्क्रीनिंग करके उनको परामर्श सहायता
और उपचार के लिए जो ड्रग्स के सेवन में बच्चों के लिए लिंकेज सहायता प्रदान करने का काम करता है और बच्चों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उनके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, हमारे जो शिक्षक होते हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि हमारी क्लास में कौन बच्चा पढ़ने में होशियार है लेकिन वो गुमसुम क्यों रहने लगा है, वो एक चुपचाप एक तरफ क्यों बैठता है। उसमें इस तरह के जब बदलाव आते हैं उन बदलाव के चिन्हों को पहचान करके उनके पेरेंट्स को बुलाना, उनके साथ में काउंसलिंग करना और काउंसलिंग करके उस बच्चे को उस नशे की गिरफ्त से अगर उस दिशा में बढ़ गया है उसको बाहर लाना और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए यह नव चेतना मॉड्यूल बनाया गया और इसमें 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक 2 तरह के मॉड्यूल इसमें बनाए गए। पहले उसमें 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक और उसमें 3 तरह की गतिविधियों के माध्यम से और दूसरा 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक, जिसमें 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक जो 3 तरह की गतिविधियों में उसमें जोड़ा जा रहा है। इसमें नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से देश भर में 10 लाख शिक्षकों और 2.4 करोड़ छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए इस नवचेतना मॉड्यूल में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें जो 6वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित करना, फिर स्वस्थ भोजन के लिए और जोखिमों को पहचानना कि किस तरह के जोखिम। कई बार क्या होता है, कोई बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से नशा नहीं करना चाहता लेकिन कई बार उसका फ्रेंड सर्कल के कारण, दबाव के कारण कोई कहता है एक बार इसका पुड़िया का उपयोग करने में हर्ज क्या है, वो मना करता है, दूसरी बार उसको फिर बोला जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है एक बार लेना शुरू करता है। मिनिस्टर, यू नीड नॉट रिप्लाई टू ऑल देयर वर्ड्स, यू बी वेरी ब्रीफ प्लीज। माननीय सभापति महोदय जी, अब तक 10 राज्यों में नवचेतना मॉड्यूल इसको आगे बढ़ाया गया है। 434 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इन राज्यों में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा शामिल हैं। मैं माननीय सदस्य के साथ ही साथ माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, इस नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से भी अपने अपने क्षेत्रों के विद्यालयों के साथ और विद्यार्थियों के साथ जुड़कर इस नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन करके देश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। 4th सप्लीमेंट्री श्रीमान रविचंद्र वाडीराजू जी। आपकी माध्यम द्वारा माननीय मंत्री जी को एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है। सर, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री टू ट्रेन स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर नशा मुक्त भारत अभियान कैंपेन सर? दैट इज द क्वेश्चन सर। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय जी, जैसा कि मैंने अभी अपने पूर्व के उत्तर में बताया कि स्कूल के जो हमारे छात्र हैं उनको नशे की गिरफ्त से बाहर लाने के लिए, नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा उनको बनाने के लिए कि न केवल वो स्वयं नशे से मुक्त हों बल्कि इस अभियान के साथ में जुड़कर बाकी छात्रों को भी प्रेरित करने में उनका योगदान जुड़े और उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी उसमें बनाया गया है नवचेतना मॉड्यूल में, क्योंकि शिक्षक ही वो समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो समाज की दिशा को भी जानते हो। बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही साथ समाज को भी दिशा देने का काम उनके द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि नवचेतना मॉड्यूल के अंतर्गत 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का और 2.4 करोड़ छात्रों को इसमें प्रशिक्षित करने का इसमें अभियान में योजना बनाई गई है, क्योंकि शिक्षक हमारे सबसे पहले व्यवहार, बच्चों की उपस्थिति, उनका शैक्षणिक प्रदर्शन और किस तरह के उनका मित्रों के साथ में उनका मेलजोल है, इन सारी चीजों को और उनमें होने वाले बदलावों को शिक्षक बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। और नशीले पदार्थों की अगर किसी का झुकाव हो रहा है तो वो भी उसके संकेतों को शिक्षक बहुत आसानी से समझ लेते हैं और शुरुआत में ही उन लक्षणों को पहचान करके उनको काउंसलिंग करके सही स्थान पर भेजना, जिससे कि बच्चे जो है ना नशे की गिरफ्त से बाहर रह सकें और उनके माता पिता के साथ में काउंसलिंग करके बच्चों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करना। नशा मुक्ति के लिए खेल और स्कूलों ने ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए एक स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए खेल कूद की गतिविधियों को इसको प्रभावी ढंग से उपयोग किया है और देशव्यापी कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मणिपुर में मोटरसाइकिल रैलियां, साइकिल रैलियां, क्रिकेट टूर्नामेंट, बिहार में फ्रीडम रन, गुजरात में भारोत्तोलन प्रतियोगिताएं, मेघालय में फुटबॉल मैच, सिक्किम में मैराथन और दिल्ली में वॉलीबॉल मैच, इन खेलों के साथ में जोड़कर विद्यार्थियों को नशे का एक ऐसा समय आता है दिन भर में जब नौजवान को या बच्चे को नशे की लत लगती है और वो समय अगर निकल जाता है
तो फिर वो नशा नहीं करता है। इसलिए उनको शैक्षणिक गतिविधियों के साथ में ही खेल की गतिविधियों के साथ में जोड़ना, उनको संगीत की गतिविधियों के साथ में, उनको नाटक की गतिविधियों के साथ में जोड़ना, ताकि वो इससे बाहर भी आ सके और समाज को प्रेरित करने का काम भी कर सके। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान शक्ति सिंह गोयल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करता हूं। सर, ये कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र का नाश की नींव नशा होता है और इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मंत्री जी जो बात कर रहे हैं, मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं कि जो भी नशेली चीजें आती थी, आप स्लोगन देते हो नशा मुक्त भारत, पर सबसे ज्यादा आखिरी 10 सालों में देखोगे तो ड्रग्स, नशे वाली चीजें बाहर से आती है हमारे देश में। और सबसे बड़ा एपी सेंटर, सबसे ज्यादा, मेरे ही क्वेश्चन के जवाब में कहा, गुजरात में सबसे ज्यादा वो नशे वाली नार्कोटिक ड्रग्स वो गुजरात में आ रही है और मुंद्रा पोर्ट एपी सेंटर है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से, क्योंकि अभी डेवलप्ड कंट्री में, Please be specific about your question. Otherwise, we have not crossed even one single question. It is going to be half an hour now. Only specific question. Sir, now the developed country has developed some medicines कि एक बार नशा करने वाले को दे दो, उसकी क्रेविंग भी नहीं होगी और अगर लेगा तो शरीर नेगेटिव रिफ्लेक्ट करेगा। जो भी नशे में पकड़े जाते हैं उनके लिए कंपलसरी ये ड्रग्स देने का कोई प्लान अपना है या नहीं? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नशे से प्रभावित व्यक्तियों के अवेयरनेस, उपचार, पुनर्वास, इलाज की समुचित व्यवस्थाएं करने की दिशा में, इस दिशा में काम करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा खेलकूद मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एनसीबी, सीमा सुरक्षा बलों सहित 15 मंत्रालयों और विभागों के साथ में मिलकर काम करता है। और स्वास्थ्य विभाग के साथ में जो अभी नशा मुक्ति के उपचार केंद्र 154 देश में प्रारंभ किए गए हैं, वो सारे के सारे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से किए गए हैं और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से ही नशे की गिरफ्त से उसमें ग्रसित जुड़े हुए व्यक्तियों को, उनको न केवल स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करना, बल्कि वहां चिकित्सकों का उपयोग करके इस काम को बेहतर ढंग से प्रभावी करने के लिए हमने इसको स्वास्थ्य विभाग के साथ में जुड़कर और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से अब निदान केंद्रों को और उपचार केंद्रों की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। Now question number 392 through P. Wilson ji. Like to place my question. Honorable Minister. The first supplementary, Shriman P. Wilson ji. Thank you, Chairman, sir. Madam, the 377th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Women, Education, Children, Youth and Sports has specifically highlighted Tamil Nadu as one of the states with 0 operational Anganwadi cum creatures, that is Palna/AWCCS, as on 31/12/2025. Despite the state's high female workforce participation in formal sectors, industrial belts, urban slums, fisheries clusters and textile hubs. In view of the committee's strong recommendation for a special fast-track approval window for the states with nil coverage, including Tamil Nadu, will the government explain why there has been a delay and discriminatory treatment in release of the central funds for the Palna component and supplementary nutrition under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 in Tamil Nadu and other states? Thank you, Chairman. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, एक तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि भेदभाव की बात उन्होंने की है, तो मैं इसको सीधे तरीके से हम नकारते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी भेदभाव किसी भी राज्य के प्रति फंड को लेकर कभी नहीं हुआ है। और माननीय सभापति जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पालना की बात आपने की, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2047 विकसित भारत में कि कैसे हम जो हमारे समाज की बचपन न्यू है, हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, उनका बेहतर पोषण, सुरक्षा
सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पोषण के एक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 की शुरुआत की गई, साथ ही साथ पालना की शुरुआत की गई। तमिलनाडु की बात उन्होंने की है, 600 पालना केंद्र की स्वीकृति भारत सरकार ने दिया है, जो आज तक एक की भी शुरुआत तमिलनाडु ने नहीं किया। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी अगर हम देखें तो ये आज का ये डेटा है कि आज तमिलनाडु के अंदर मिशन शक्ति के तहत 30 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो खर्च नहीं हुआ आज भी पड़ा हुआ है उनके अकाउंट में। मिशन वात्सल्य के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है जिसका खर्च नहीं हुआ। और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के तहत भी लगभग 16.57 करोड़ रुपया पड़ा हुआ। ये लेटेस्ट आज का हम ये डेटा दे रहे हैं। तो तमिलनाडु सरकार को पैसा देने के बावजूद पैसा खर्च नहीं करती, समय पर खर्च नहीं होता, और जिसके वजह से आज कहीं न कहीं जो भारत सरकार की योजना है उस योजना को सही ढंग से जो लाभुक है उस लाभुक तक नहीं पहुंच पाता है। सेकंड सप्लीमेंट्री Thiru P. Wilson ji. Honorable Minister, I think you should place the correct facts. I'll give you the data and details because you are accusing that Tamil Nadu is not spending. The reason lies with you. The government is aware. I will tell you, I'll explain to you. It's my duty to explain because you have made an accusation against us. The government is aware that out of the unspent balance of 716.05 crores in Tamil Nadu single nodal account as on 29 January 2025, an amount of 409.17 crore pertains to Mission Saksham Anganwadi and Portion 2.0, and this accumulation has arisen due to the delayed release of the central share, including the fourth quarter installment of 23-24 being released only on 26 March 2024. With a similar delay continuing in 24-25, despite our Honorable Chief Minister writing that you are releasing only near to the end of the financial year, and despite state having provided its share on time and submitted utilization certificate, there has been disrupting supplementary nutrition, creche services and support for over 27 lakh beneficiaries. And will the government place on record the exact quarter-wise details of funds due, release, date on which it was released and pending for Tamil Nadu for 24-25 and 25-26? And therefore, the delay is because you release it at the end of the financial year. Thank you, Chairman, sir. Honorable Minister. मैं माननीय सदस्य को बता दूं, माननीय सभापति जी, कि आपने जो पैसा नहीं खर्च करने की बात या अंतिम समय में पैसा देने की बात जो आपने की है, तो आपने जो फाइनेंशियल नॉर्म्स है उसके तहत उसका कंप्लायंस न होने के वजह से पैसा विलंब से दिया गया, क्योंकि एसएनए बैलेंस भी वहां पड़ा हुआ था। और जब से हमने एसएनए स्पर्श लागू किया है, एसएनए स्पर्श में हम मदर सैंक्शन देते हैं और फिर जब राज्य सरकार उसमें बिल देती है, उसका जो राज्य सरकार की जो राशि जो हिस्सा होता है वो देते हैं, तो वो स्वतः 2 दिनों के अंदर वो पैसा जाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से ऐसे बिल देने में देरी हो रही है, जो फाइनेंशियल नॉर्म्स है उसके कंप्लायंस में देरी हो रही है, जिसके वजह से आज भी आपके पास, इसीलिए हम ये आज का लेटेस्ट आपको हम बताएं जो पैसा अनस्पेंड पड़ा हुआ है आपके यहाँ। तो भारत सरकार इस पे कहीं भेदभाव नहीं करती है, समय पर आप कंप्लायंस न करने के वजह से आज पैसा समय पे नहीं जा पाता है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान गोविंद भाई लालजी भाई ढोलाकिया जी। माननीय महोदय श्री, मेरा माननीय मंत्री महोदया से प्रश्न है कि प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा ECCE को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा आंगनवाड़ी के माध्यम से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? महेंद्र भट्ट। सभापति महोदय, बहुत ही अच्छा प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है। और हम महिला बाल विकास
विभाग की ओर से प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा जो NEP 2020 के अनुसार कि बच्चों के प्रारंभिक देखभाल के लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए लगातार पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत जो पोषण 2.0 की शुरुआत 10 मई 2023 को की गई थी और उसके माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चों को सिर्फ पोषण नहीं, उसके साथ साथ हमारे बच्चे जो 3 साल से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है जिसके माध्यम से जो बच्चे आते हैं उसको पोषण के साथ साथ उन्हें कैसे खेल खेल में पढ़ाई भी उन्हें सिखाया जा सके, उसके लिए 2 कैरिकुलम बने हैं। और आधारशिला एक नवचेतना जो 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों का है और जो 3 साल से 6 साल के बच्चों का है आधारशिला है। तो आधारशिला के माध्यम से हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर होती है, पोषण ट्रैकर के माध्यम से हम उन्हें देते हैं ताकि बच्चों को वो सिखाए, वो बच्चों को बताए। और उसके साथ साथ लगातार सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से हम LED स्क्रीन के माध्यम से भी, ताकि बच्चों को वो दिखाए, बच्चों को खेलने की सामग्री भी हम देते हैं, बच्चे वहाँ पे बैठ के वो खेल सकते हैं। बाला पेंटिंग के माध्यम से पूरे आंगनवाड़ी केंद्र में बाला पेंटिंग, ताकि वो रंग को भी पहचाने या अन्य चीजें फल सब्जी सब इसको पहचाने, उसके लिए भी है। तो लगातार डेली लर्निंग प्रॉम्प्ट भी हम देते हैं, शैक्षणिक वीडियो भी 2 आंगनवाड़ी वर्कर को देते हैं ताकि वो लगातार बच्चों को वो बताए। तो अलग अलग माध्यम से हम पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को हर बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे, ये हम सबको पता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि 6 साल तक के बच्चों के अंदर लगभग 85% ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। तो ये भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारा निर्णय है कि बच्चों तक सही समय में बच्चों का पूरा विकास हो, ताकि यही बच्चे जो देश के भविष्य हैं, जो विकसित भारत के भविष्य है, उनको एक बेहतर वो एक इंसान बन सके। 4th सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव जी। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। वंदे उत्कल जननी, आज मेरा ओडिशा का 90th बर्थडे है। मैं यहीं से सारे बड़पुत्रों को नमन करती हूँ और मुझे प्रश्न पूछने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये बहुत संवेदनशील विषय है जहाँ पर बच्चों का विषय आ जाता है। जब नवीन पटनायक सरकार में आए तब हमारी ओडिशा की जो IMR और MMR था वो 3 डिजिट में था। उसको ड्रास्टिकली पहले ही कैबिनेट में उसको किस तरह से कमाया जाएगा, घटाया जाएगा, ड्रास्टिकली इसके ऊपर काम हुआ। और आज ओडिशा भारतवर्ष में एक मिनट सर आ रही हूँ, भारतवर्ष में ऐसा राज्य है जो ड्रास्टिकली इसको कमाया। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से, क्या अंडर न्यूट्रिशन के कारण बच्चों को डिजीज होते हैं और बच्चों को वो डिजीज में माल न्यूट्रिशन में जाते हैं और उनका डेथ होता है? कितने ऐसे केसेस ओडिशा में देखा गया है और माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या पदक्षेप लिया है? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, ये तो ऐसे उड़ीसा के बारे में पूछ रही हैं, इस प्रश्न से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि कुपोषण मुक्त भारत के अभियान के तहत हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत समग्र विविध तथा लाइफ साइकिल अप्रोच के आधार पर हम काम करते हैं। महोदय, अर्ली डिटेक्शन, टारगेटेड इंटरवेंशन और पोषण परिणामों की निरंतर निगरानी पर भी ध्यान देते हैं। बच्चों का हाइट, वेट के साथ साथ उसका लगातार उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से कराए जाते हैं और उसके साथ साथ वो सारे डेटा आंगनवाड़ी मतलब पोषण ट्रैकर में भी होता है, जिसका हम लोग उसको देखते भी हैं, ताकि सैम और मैम से ग्रस्त बच्चों का जैसे ही वो लक्षण आता है तो उसके लिए पहले ही हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चों का समुचित देखरेख हो और
जब ज़्यादा दिक्कत हो, जो SNP जो पूरक पोषण कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी हम हॉट कुक मिल HCM भी देते हैं, THR भी देते हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रह सके। और उसके साथ साथ लगातार जांच भी चलती है आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के माध्यम से भी। जो छोटे बच्चे हैं आंगनवाड़ी वर्कर उनके घर में जाके, जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं वो घर में जाकर जो होम विजिट जब करते हैं तो बच्चों के क्या लक्षण है, कैसे क्या परेशानी है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये प्रयास करते हैं। अगर ये लगता है कि बच्चे कुपोषित है तो निश्चित रूप से उसका उपचार हम शुरू कराते हैं। उसका जो THR है या हॉट कुक मिल है, उसके साथ साथ NRC केंद्र में भी आशा वर्कर के साथ मिलकर उनके उपचार के लिए भी भेजा जाता है। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। महोदय, जैसे कि आज बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य वर्धन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने पर विचार रखती है? क्या उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं? क्या कार्यकर्ताओं पर बढ़ते कार्यभार को कम करने की कोई योजना सरकार के पास है? मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, ये मानदेय से संबंधित है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को ये बता देना चाहती हूँ कि जो लगभग 13,34,954 आंगनवाड़ी केंद्र अभी हमारे जो संचालित है, उस केंद्र में जो आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उनके लिए सरकार समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी करती है और उसके साथ साथ उन्हें अन्य सुविधाएं भी हम सब देते हैं। चूँकि ये हम सबको पता है कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे सबसे ग्रास रूट लेवल पर वो काम करती हैं और सिर्फ आंगनवाड़ी ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से भी बहुत सारे काम उनको देते हैं। तो निश्चित रूप से दिन भर वो बच्चों के लिए और अन्य जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग लेडी मदर हैं, अन्य सबके लिए वो काम करती है। तो भारत सरकार की ओर से लगातार कैसे उनको उनकी सुविधाएं मिल सके, तो उसके लिए मानदेय की भी बढ़ोतरी होती है और उसके साथ 20 दिनों का उनका वार्षिक अवकाश भी है दिया जाता है। 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था की गई है और अगर किसी भी तरह से उनका चिकित्सकीय गर्भपात या अन्य होती है तो उसमें भी कोई समस्याएं होती है तो उसमें भी 45 दिनों की छुट्टी उन्हें सवैतनिक उन्हें दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत भी बीमा कवर किया जाता है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी लगभग 5 लाख की वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज भी उन्हें दी जाती है। साथ ही साथ पदोन्नति के भी अवसर दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर से CDPO, तो 50% तक का ये उन्हें दिया जाता है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 50% पद उसमें 5 वर्षों का जिसका अनुभव है उसमें भरा जाता है। तो इस तरह अलग अलग समय पे और निश्चित रूप से लगातार फिर हम जो अच्छे कार्य करते हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में उन्हें भी दिल्ली लाकर उन्हें सम्मानित भी किया जाता है और पुरस्कृत भी किया जाता है। और उसके साथ साथ लगातार राज्य सरकारों की ओर से भी, विभिन्न राज्यों की ओर से भी उन्हें मानदेय दिए जाते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है निश्चित रूप से जितनी वो सेवाएं कर रही है, राज्य सरकार के अभी BLO में भी ड्यूटी उनकी लगाई गई है तो उसके लिए भी आग्रह चुनाव आयोग से भी किया गया था कि कुछ ड्यूटी में कटौती की जाए ताकि वो बेहतर देखभाल बच्चों की कर सके। तो ये हमारा लक्ष्य है कि उन आंगनवाड़ी वर्कर जो ग्रास रूट पर है बेहतर सुविधा उन्हें दी जा सके और इसको समय समय पर हम लोग करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 393 श्रीमान संजय सेठ जी। ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय सेठ जी। जी महोदय, हमारे यूपी में डबल इंजन की सरकार में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्किल्स की जॉब मार्केट को जोड़ने के लिए
सरकार ने जो नई एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाई है वो एक ऐतिहासिक कदम है। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि सरकार डिफेंस कॉरिडोर के पास मौजूदा ITIs को CNC मशीनिंग, ड्रोन्स और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग जैसी एडवांस लैब के साथ अपग्रेड कर रही है क्या? और क्या इस नई कमेटी के विजन के तहत इन ITIs का सीधा इंडस्ट्री टाई अप रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों से कराया जा रहा है ताकि युवाओं को सीधे उनके गृह राज्य से स्किल जॉब मिल सके? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति जी, माननीय सदस्य ने यूपी में जो एक बड़ी व्यापक नीति के तहत रक्षा के उद्योग के निर्माण में निवेश को आयोजित और नियमित ढंग से जो है इनवाइट किया गया है डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से, उस संबंध में सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में भी डिफेंस कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है सर, एंड दीज आर बोथ प्रोजेक्ट्स आर एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स एंड ऑफ वाइटल नेशनल इंपॉर्टेंस। अकॉर्डिंगली जो अभी हमारी ITI के लिए अपग्रेडेशन स्कीम PM सेतु है, मैं कहना चाहूँगा कि अब तक के देश के इतिहास में सबसे व्यापक निवेश ITI की उस बुनियादी संस्था में इस योजना के तहत होने जा रहा है। और इस योजना में पहले भी ITI में जो निवेश हुआ, जैसे आपकी मॉडल ITI की स्कीम आई थी, स्ट्राइव की स्कीम आई थी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में ITI के नवीनीकरण के लिए योजना आई थी। ये PM सेतु स्कीम उन पहले ही योजनाओं से फर्क है और अंतर यह है कि इसमें अनिवार्य है और आवश्यक है कि स्थानीय उद्योग को प्राथमिकता दी जाए। 60,000 करोड़ का जो निवेश 5 साल में होने जा रहा है, देश भर के सरकारी ITI में लगभग 1/3 ITI 1000 ITI इसमें कवर्ड होंगी। उसमें 30,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 20,000 करोड़ राज्य सरकारों को देना है, 10,000 करोड़ हमें CSR के माध्यम से इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड करते हुए लाना है। ये इंडस्ट्री लेड SPV स्ट्रक्चर से जो एक क्रियान्वित योजना होने जा रही है। तो जो लोकल SPVs हैं जो फॉर्म होंगे, उसके लिए भी ये इनवाइट किया जा रहा है कि डिफेंस में जो PSUs हैं और डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है कि उनको हम उसमें उनका ख्याल रखें और ध्यान रखें और उनको इनवाइट करें। उत्तर प्रदेश में अब तक 8 इंडस्ट्री के क्लस्टर्स के तहत स्पोक्स का प्रस्ताव राज्य सरकार ने तैयार किया है और अभी RFP भी यूपी की सरकार जारी कर चुकी है, जो 7 अप्रैल को वो प्रक्रिया समाप्त होगी। और उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में जो अलाइंड स्पोक्स हैं उस क्षेत्र के मैं जिक्र करना चाहूँगा। आगरा में एक स्पोक है, आपके अलीगढ़ में स्पोक है, आगरा में हब है सर, चित्रकूट में एक स्पोक है, गवर्नमेंट ITI झांसी, गवर्नमेंट ITI कानपुर, गवर्नमेंट ITI लखनऊ, ये सब डिफेंस कॉरिडोर से अलाइंड है। और जब इन स्पोक्स और हब्स में इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाएगा, मुझे लगता है कि डिफेंस इंडस्ट्री को उसमें प्राथमिकता दी ही जाएगी। मैं बताना चाहता हूं अभी 169 टोटल ट्रेड्स हैं जो ITI में हम सिखाते हैं, उसमें से 32 ट्रेड्स डिफेंस के साथ अलाइंड है। और PM सेतु के कंपोनेंट 2 में देश भर में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की बात रखी गई है। उसमें कानपुर में जो NSTI है उसको भी शामिल किया गया है और भी फरवरी के महीने में हमने फ्रांस के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट भी एक्सचेंज किया है, वो भी डिफेंस इंडस्ट्री और एरोनॉटिक इंडस्ट्री को टारगेट करेगा सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय सेठ जी। महोदय, यूपी सरकार की एक स्कीम है ODOP, उसमें ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। इसमें बजट में स्किलिंग के लिए भारी भरकम आवंटन वोकल फॉर लोकल विजन को ताकत दे रहा है। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि क्या यूपी में मॉडर्नाइज हो रही ITIs को सीधे स्थानीय ODOP क्लस्टर्स के साथ मैप करने की कोई ठोस पॉलिसी है? उदाहरण के लिए क्या कानपुर की ITI में एडवांस लेदर टेक मशीनरी या मुरादाबाद में मॉडर्न ब्रास टेक की ट्रेनिंग दी जा रही है, या ऐसा कोई फ्रेमवर्क है जिससे ITI पास आउट छात्र सीधे हमारे लोकल एक्सपोर्ट हब्स की ग्रोथ को बूस्ट कर सकेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर बिल्कुल है, ODOP इज वन ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज, जैसा माननीय सांसद ने बताया। और PM सेतु में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी हम जो समूह हैं, जो 5 संस्थाएं हैं जो राज्य सरकार ने चिन्हित की हैं, उनको देना चाहते हैं।
इसलिए उसके ऊपर एक SPV का निर्माण होगा और उसमें 51% भागीदारी लोकल इंडस्ट्री को, MSME को भी हम इनवाइट कर सकते हैं कि वो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और यूपी ने जो 8 क्लस्टर दिए हैं वो ODOP से ही अलाइंड है सर। कानपुर में लेदर प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम यूटेंसिल जो ODOP प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंगली लेदर टेक, फुटवेयर फैब्रिकेशन के ट्रेड्स कानपुर के हब एंड स्पोक में PM सेतु के अंतर्गत लिए जाएंगे सर। मुजफ्फरनगर का गुड़ विश्व प्रसिद्ध है और एग्रो मशीनरी और फूड प्रोसेसिंग के ट्रेड्स के अलाइंड PM सेतु में वहां इंप्लीमेंटेशन होगा सर। आगरा में भी लेदर और ग्लासवेयर जो फिरोजाबाद का क्षेत्र है उसको जोड़ के हम उम्मीद करते हैं कि PM सेतु में एक अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री पार्टनर को चिन्हित किया जाएगा। गोरखपुर का टेराकोटा, काला नमक राइस, बनाना फाइबर यानी सेरामिक्स और क्राफ्ट ट्रेड्स और गोरखपुर का GI टैग टेराकोटा क्लस्टर को हम टारगेट करके चाहेंगे कि इंडस्ट्री के जो हमारे पार्टनर्स हैं वो आगे आए। बनारस में वीविंग इन सिल्क टेक्नोलॉजी ट्रेड्स जो डेडिकेटेड विमेन हमारी ITI है, बनारस में इसको इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है और वो महिला बुनकरों को और कामगारों को ही उनके बीच ही काम करती है सर। प्रयागराज में नेचुरल फाइबर, क्राफ्ट एंड एग्रो प्रोसेसिंग ट्रेड्स, सर लिस्ट लंबी है। ये उदाहरण के तौर पर मैंने पेश किया कि ODOP से ही अलाइंड PM सेतु स्कीम को रखा गया है और उम्मीद है कि दोनों योजनाएं समन्वय बनाते हुए एक रिसोर्स सेंटर लोकल MSME यूनिट्स के लिए तैयार खड़ा होगा सर। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। धन्यवाद शिवन। मैं एक अच्छा सवाल है, अच्छा प्रयास है, पर एक चीज बता दूं, जमीनी हकीकत कुछ दूर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 26वें नंबर पे तकनीकी शिक्षा में भी पहुंच गया है। तो ये प्रगति हो रही है, अवनत हो रही है, खुद डिसाइड कर ले। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तहसील लालगंज में एक ITI की बिल्डिंग बनकर खुलकर तैयार है पिछले 7-8 सालों से, लेकिन उसकी पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि स्टाफ की कमी है, टीचर्स की कमी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उनकी पढ़ाई होती है। तो मेरे कहने का मतलब है खोलने का फायदा क्या हो। तो सिर्फ एक आग्रह, सीधा सवाल कि क्या माननीय मंत्री जी जो स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं वो निर्देशित करेंगे कि जो ITI बेल्हा में लालगंज में खुली है वहीं चलाई जाए। एक बहुत ही मैं समझता हूं कि आग्रह पूर्वक ये प्रश्न है, इसका उत्तर मैं चाहता हूं। निर्देश इसके लिए देने की कृपा करेंगे कि वहीं बेल्हा में लालगंज में ही चलाया जाए जहां बिल्डिंग बनी हुई है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर ITI का फाइनेंशियल और प्रशासनिक जो कंट्रोल है वो राज्य सरकारों के ही हाथ में होता है। DGT जो डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग है वो एफिलिएशन के लिए काम करती है। अभी मैंने, क्योंकि इस प्रकार के इश्यूज संभवतः उठ सकते हैं, कई राज्यों में अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, एक नई बॉडी का गठन का प्रस्ताव मैंने किया है। वी आर कॉलिंग इट सारथी सर, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड रिफॉर्म टास्क फोर्स फॉर होलिस्टिक ITI ट्रांसफॉर्मेशन। सर इसमें राज्य स्तर पे भी जो कौशल विकास के मंत्री हैं वो भी इस कमेटी में, नेशनल कमेटी में मेरे साथ रहेंगे। इस कमेटी को मैं चेयर करूंगा। इंडस्ट्री के लोग, हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम के लोगों को उसमें निमंत्रण दिया जाएगा और उस तरह के सुझाव लिए जाएंगे। माननीय सांसद ने एक विशेष ITI को लेकर जो चिन्हित करके बात की है उसकी विस्तृत जानकारी मैं माननीय सांसद को उपलब्ध कराऊंगा सर। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी। सर मैंने इसके लिए नहीं दिया, 394 के लिए दिया था मैंने। ठीक है। नाउ श्री सतनम सिंह सांधू जी। सर PM सेतु स्कीम जो है ये एक रेवोल्यूशनरी और विजनरी स्कीम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर 60,000 करोड़ के साथ 2025 में शुरू की गई स्कीम ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है और मेरा क्वेश्चन जो है वो पंजाब के संदर्भ में है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में कितने इंडस्ट्री क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है और उसमें जो स्कीम के अंतर्गत एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान देना होता है वो कितनों ने दिया। क्योंकि पंजाब में एक तरफ हमारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ हमारा युवा जो है वो अच्छी स्किल लेने के लिए आगे आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि पंजाब के क्लस्टर्स की जानकारी दें और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर पंजाब ने
आइडेंटिफाई किया है क्लस्टर को। पंजाब ने जो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो इस पूरे योजना के क्रियान्वयन पे अपनी नज़र रखेगी और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस के तहत काम करेगी, वो भी पंजाब ने फॉर्म कर दिया है सर, और स्टेट बजट का अलग हेड भी बना दिया है। लेकिन अभी पंजाब ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के लिए RFP फ्लोट नहीं किया है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि पंजाब की सरकार इसमें सहयोग करेगी। साथ ही जो 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसका जिक्र मैंने किया था PM सेतु के कंपोनेंट 2 में, ये ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है राष्ट्रीय स्तर की, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब में लुधियाना में जो हमारा NSTI है उसको भी चिन्हित किया गया सर। डॉक्टर अजीत माधवराव कोपचडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जानता हूं कि ये सवाल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। माननीय मंत्री जी, मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं। महाराष्ट्र राज्य के लिए PM सेतु योजना की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योगों द्वारा महाराष्ट्र में प्रारंभिक रूप से चयनित हब नागपुर, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर है। क्या सरकार राज्य सरकार के सहयोग से इन हबों को महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने में इच्छुक है? और मेरा ये आपसे सवाल है कि देश भर के सभी ITI में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम शुरू करने की आपके माध्यम से भविष्य में कोई योजना है क्या? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, महाराष्ट्र की जानकारी भी मैं दे सकता हूं। 3 जो है क्लस्टर्स महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने चिन्हित किए हैं। टोटल 15 ITI को PM सेतु में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में और जनपदों में रखा गया है, और ये कोई अपर सीलिंग नहीं है। अभी लगभग हमें 1000 ITIs को कवर करना है, तो जो भी राज्य सरकार की तरफ से यदि और भी क्लस्टर चिन्हित किए जाएंगे हम उनमें भी ये सुविधा दे सकते हैं। AI के न्यू एज कोर्सेज ITIs में काफ़ी अच्छे पॉपुलर हैं सर। प्रोग्रामिंग AI प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स हमने जो है CITS क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का कोर्स NSTIs में भी चला है, और AI प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स काफ़ी पॉपुलर है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ जनरेटिव AI, बेसिक्स ऑफ IT स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू AI, इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हम ITI के संस्थानों में चला रहे हैं सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 394, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। क्वेश्चन नंबर 394 सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। बोले सभा पटल पर रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू होने के 10 साल बाद भी न्याय की गुहार लगा रहे बच्चों को एक ऐसे सिस्टम में धकेल दिया गया है जो खुदम खुद अपाहिज है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर 2023 तक देश के 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कुल 1 लाख से अधिक पेंडिंग केसेस थे, जिसमें 55% पेंडिंग है। इन बच्चों को सर हम सुधारने के बजाय तरीकों में उलझा रहे हैं, क्योंकि हर चौथा बोर्ड फुल बेंच के बिना चल रहा है। 30% के प्रसाद लीगल सर्विस क्लिनिक ही नहीं है, ना जज ना सोशल वर्कर। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब बुनियादी ढांचा ही निरादर है तो मिशन वत्सल्य के तहत सरकार विशेषज्ञों की सिफारिशों को मानते हुए पेंडेंसी को ट्रैक में लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए क्या तुरंत एक नेशनल जुवेनाइल जस्टिस डेटा ग्रिड स्थापित करेगी? मित्तल जी, ओनली 2 मिनट्स मोर, जो अलाउ द मिनिस्टर टू आंसर। पूरा करेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर। 2-3 पेज पढ़ दें। माननीय सदस्य ने पूछा है, माननीय सभापति महोदय, किशोर न्याय बालिकाओं के देखभाल एवं संरक्षण के लिए हमारे अधिनियम 2015 धारा 54 के अंतर्गत देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं को नियमित निरीक्षण व्यवस्था की जाती है, और इसी प्रावधान के अनुसार राज्य जिला स्तर पर निरीक्षण समितियां गठित की गई है, जो कि प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार स्थानीय निरीक्षण करती है, और साथ ही सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करती है। माह में 1 बार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित भी करती है, जहां पर सामाजिक ऑडिट विषय का धारा 55 के अंतर्गत
स्थानीय कार्य समय समय पर मूल्यांकन करने की व्यवस्था, जिसमें आवश्यक अनुसार तंत्र रूप से त्रैमासिक मूल्यांकन भी करती है। मैं यही भी अवगत कराना चाहती हूं कि बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि केंद्र शासन और प्रदेश द्वारा नियमित रूप से की जाती है। सरकार बाल संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम आवश्यक कदम निरंतर उठा रहे हैं।